Good morning, students. Here is a lesson number 11, force and pressure, and this is your textual exercise question answers. Give two examples each of situations in which you pull or push to change the state of motion of objects. So, example 1, a batsman hitting a ball to push, drawing water from a well to pull. Now, give two examples of situations in which applied force causes a change in the shape of an object. So, example 1, when the lump of dough on a plate is pressed down with hands, it changes only in the shape of it. सो फर्स्ट एग्जांपल में हम जो लंप ऑफ डव है मीन्स हम जो आटा जो गूंथते हैं उसे हम हमारे हाथों से हैंड से प्रेस करते हैं और उसी वजह से जो उसका शेप है वो चेंज होता है. एग्जांपल 2, व्हेन वी प्रेस द फोम ओनली इट्स शेप इज चेंजेस. जब हम फोम को प्रेस करते हैं तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, अप्लाई फोर्स. A charged body dash an uncharged body towards it, attracts. A charged body attracts an uncharged body towards it. To move a loaded trolley we have to dash it, push or pull it. Now fourth one, the north pole of a magnet, the dash the north pole of another magnet. The north pole of a magnet dash the north pole of another magnet, repels. क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल मैग्नेट हैं तो वो रिपेल होंगे. Now an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill the gaps in the following statements using the following terms. To stretch the bow, उसने bow को stretch किया. The archer applies a force that causes a change in its change in its shape. Muscular contact, non-contact, gravity, friction, shape, attraction. Here is the following words, so you have to fill in these gaps. Second one, the force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash force, that is muscular force. जब हम stretch करते हैं हमारे bow से तो हमारा muscular force जो है वो apply होता है. The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force, that is called contact force. क्योंकि मोशन को हम एरो को चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का कांटेक्ट हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट्स, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर, ग्रेविटी and that due to the friction of air. Now here is the question number 5. In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. Squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. हम squeeze करते हैं lemons को, हमारे दोनों फिंगर्स के बीच हम उसे दबा के रखते हैं. नाउ टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब. जब हम टू फिंगर्स का यूज़ करके टूथपेस्ट में से जो है वो टूथपेस्ट में से जो टूथपेस्ट ट्यूब में से टूथपेस्ट हम बाहर निकालते हैं. नाउ सिचुएशंस, एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स. सो फिंगर्स, पीस ऑफ लेमन, effect of the force, shape of piece of lemon is changed and juice squeezes out. जो लेमन का जो पीस है वो उसका शेप है वो चेंज हो जाता है और जूस जो है वो बाहर आ जाता है. फिंगर्स. नाउ टूथपेस्ट ट्यूब, शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब इज चेंज. अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी टूथपेस्ट हम लेंगे तो उसका जो शेप है ट्यूब का वो चेंज हो जाएगा एंड पेस्ट कम आउट ऑफ द ट्यूब. नाउ सस्पेंडेड लोड, स्प्रिंग elongates. Muscles of legs, floor, athlete state of a motion is changed. Now here is question number 6. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? When a blacksmith hammers a hot piece of iron, the muscular force due to the hammering changes the shape of the piece of iron. जब muscular force अगर उस पर लगेगा तो hammers with the help of hammer तो जो है आयरन का जो शेप है पीस का वो चेंज हो जाएगा. एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ. हमने इन्फ्लेटेड बलून को प्रेस किया है, उसे हमने सिंथेटिक क्लॉथ से हमने रब किया है. इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल, और बलून जो है वो वॉल पे स्टिक हो जाता है. व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
हम कई बार हमारे कोम को जो है कोम को हमारे बालों में ऐसे बार बार घुमाते हैं, उसके बाद पेपर के बिट्स जो हम रखते हैं तो कोम पर चिपक जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बलून को भी अगर हम हमारे बालों में ऐसे घिसते हैं और फिर हम उसे जो है वॉल पर हम उसे टच करते हैं तो वो स्टिक हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन बलून एंड द वॉल। नाउ नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबाउ ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बकेट है उसमें वाटर आपको ग्राउंड लेवल से उसे हेल्ड करना है। डिस्कस वाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट आर मस्कुलर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जब हम उसे उठाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स जब प्लास्टिक बकेट हमारा हैंड में भी रहेगा तो भी वो जो है अर्थ जो है वो उसे अट्रैक्ट करेगी। द मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट is in the upward direction while gravitational force is acting in the downward direction. Both the forces are equal in magnitude। और दोनों forces जो हैं वो equal in magnitude है। Now third point, a load suspended from a spring while its other end is on hook fixed to a wall। जो load है वो spring में अगर हम उसे press करते हैं और उसे खींचते हैं तो हुक में जब हमने स्प्रिंग को लगाया तो वो फिक्स वॉल पर फिक्स हो गई। दूसरे एंड से अगर हम उसे खींचेंगे तो एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू अ क्लियर बार एट अ सर्टेन हाइट। एथलीट जो है वो हाई जंप करने के लिए एक बार पे एक सर्टेन हाइट पर जंप करता है। Now these forces do not bring any change in the state of motion of the bucket because both forces are equal in magnitude and opposite in direction। दोनों forces जो हैं वो अपोजिट और मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन है, अपोजिट मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन है, दस दे कैंसिल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज 0। Now ninth question, a rocket has been fired upwards to a launch satellite in its orbit. Name two forces acting on the rocket immediately. Gravitational force acting on the rocket in the downward directions towards the center of the earth। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसमें अप्लाई होगा रॉकेट के जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा सेंटर ऑफ द अर्थ में तब। ना फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा, जब वो एयर में अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट जो है वो मूव करेगा। Now question number 10, when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles once we release the pressure of the bulb। एक बार जो है वो प्रेशर बल्ब में से जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा तो वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर और वाटर जो है वो भर जाएगा। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ रबर बल्ब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो फिलअप हो जाएगा। नाउ हियर इज योर क्वेश्चन नंबर चैप्टर 11 force and pressure is finished and this is a textual exercise is also finished। I hope this video will help you to learn at home। Stay home, stay safe, keep learning and watching this video। Stay tuned till our next session। Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day।